Now we are quickly recapping next question of demand and recovery, that is question number 7. तो let's quickly recap क्या question कह रहा है. तो क्या है कि एवरेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन इशू शोकॉज नोटिस ऑन 31 जनवरी 2026 को 27 को शोकॉज नोटिस इशू किया जा रहा है अंडर सेक्शन 74A ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 के बीच में. There is something we called it as a short payment of a tax. Everest Technological Private Limited contended Shoko's notice issued to it. It is time barred in law. You are required to examine the technical veracity of contention of this. तो देखो आइडियली शोकोस नोटिस कब तक इशू हो जाना चाहिए. तो 24-25 वाला डेटा है यानी कि 31 दिसंबर 2025 से 42 मंथ्स यानी कि 3.5 साल गिन लो. यानी कि 2025 में 3 ऐड करेंगे तो 2028 ही हो गया. और उसके बाद 30 जून 2029 तक हो जाना चाहिए इशू. अब इसमें क्या है, the contention of Everest Technologies Private Limited is not valid in law. The Shokus notice can be issued within 42 months from the due date of furnishing the annual return for the relevant financial year to which the short payment relates to. The due date for furnishing annual return for a financial year is 31st December of following the end of financial year, because this financial year is 24-25. तो वहाँ से 31st December 2025 से इशू होगा एंड वहाँ से within 42 months. So the Shokus notice has been issued for a period between this to this which falls in the financial year. Due date for furnishing the return would be this and 42 months क्या कब lapse होगा. It will be on 30th June 2029. हमारा भी यही आया था. The Shokus notice ought to have been issued latest by this since in the given the notice has been issued. नोटिस कब इशू किया है 31/1/2027. नोटिस इज़ नॉट टाइम बैड. नोटिस इज़ नॉट टाइम बैड. Contended the Shokus notice issued to it is a time bed in law. No, it is not time bed in law. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा. Then comes question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये बोला जा रहा है राजुल एसोसिएट हैज़ बीन इशू शोकोस नोटिस ऑन 31/12/2029 अंडर सेक्शन 74A ऑन अकाउंट ऑफ क्या शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1/7/2024 एंड 31/12/2024 ड्यू टू सेपरेशन ऑफ फैक्ट. इट हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग ऑन 15/1/2030. Advise Rajul Associate what should be the written submission in reply to Shoko's notice issued to it. तो हम क्या बोल रहे हैं, राजुल एसोसिएट हैज़ बीन इशू शोकोस नोटिस ऑन शोकोस नोटिस इशू किया गया है 31/12/2029 अंडर 74A ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1/7/2024 से एंड 31/12/24 ड्यू टू सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स. इट हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग ऑन 15/1/2030. तो इसमें हमें क्या बताना है कि the written submission in reply to Shoko's notice issued to Rajul Associate are as follow. The Shoko's notice issued for a normal period of limitation under section 74A is not sustainable. This Shoko's notice under section 74A can be issued at within 42 months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the short paid tax relates to. The due date for furnishing annual return for a financial year is on and before the 31st day of December following the end of such a financial year. The Shoko's notice has been issued for a period between 1/7/24 to 31/12/2024 which fall within the financial year 24-25. ड्यू डेट कब से होगी 31/12/2025 से 42 मंथ्स गिन लो तो इट विल बी 30/6/2029. सिंस द नोटिस हैज़ बीन इशू आफ्टर, नोटिस कब इशू किया 15/1/2030 जबकि हमारा लास्ट डेट क्या था लास्ट डेट क्या था 30/6/2029 और इशू कब किया बाद में क्या. द एंटायर प्रोसीडिंग इज़ बैड बाय लिमिटेशन एंड डीम टू बी कंक्लूडेड अंडर सेक्शन 75. तो ये तो बाद में हो गया. द एंटायर प्रोसीडिंग इज़ बैड बाय लिमिटेशन. इट इज़ आफ्टर द since the notice has been issued after this the entire proceeding is barred by limitation and deemed to be concluded under this
सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि a person is chargeable with a tax in case of fraud. He decide to pay the amount of demand along with interest before issue of notice. Is there any immunity available to such a person? एक पर्सन चार्जेबल विद a tax in case of fraud में आ रहे, ही डिसाइड टू पे द अमाउंट ऑफ डिमांड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट बिफोर इशू ऑफ नोटिस। इशू होने से पहले वो पे मतलब शोकोस नोटिस इशू करने से पहले अगर वो सोच रहा है तो उसे 15% ऑफ टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। Yes, person chargeable with the tax shall have an option to pay the amount of tax along with interest and a penalty. Interest, tax and a penalty. 15% of tax involved as ascertained either on his own or ascertained by the proper officer on such a payment. No notice shall be issued with respect. अगर पहले ही पढ़ देता है शोकोस नोटिस इशू से पहले और फ्रॉड वाले केस में वो है तो फिर 15% ऑफ टैक्स, ठीक है। ये तो हमें पता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10th वाला, Mr. X जो है registered under GST Act had made a short payment of GST for the month of July. He do not want a show cause notice to be served on him by proper officer advice. वो चाहता ही नहीं है कि उस पर show cause notice आए। If short payment of taxes on account of reason other than fraud वाले केस में है वो फॉल कर रहा है और वो चाहता है कि नोटिस ना ही आए तो वो पे कर दे और पेनल्टी वगैरह उस पर कुछ नहीं लगेगी फिर अदर देन फ्रॉड है। और अगर फ्रॉड वाला केस है तो फिर 15% लग जाएगी। तो शॉर्ट पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ रीजन अदर देन फ्रॉड एज पर सेक्शन 74A ऑफ CGST द शो कॉज नोटिस विल नॉट बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इफ मिस्टर एक्स पेज द अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल thereon on the basis of his own ascertainment of such a tax. The tax is ascertained by the proper officer before the service of notice and inform the proper officer in writing of such a payment. उसके बाद 11th वाला ये मतलब सेकंड वाला पार्ट दैट इज़ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड एज पर सेक्शन 74A ऑफ द CGST Act 2017 द शो कॉज नोटिस विल नॉट बी इशू बाय द प्रॉपर ऑफिसर इफ मिस्टर एक्स पेज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टैक्स पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन एंड अ पेनल्टी। अगर वो पे कर दे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल एंड अ पेनल्टी कितना लगेगा उसे 15% ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज, या तो वो खुद से असेटमेंट कर ले टैक्स का या फिर PO बता दे उसे, प्रॉपर ऑफिसर बता दे कि कितना टैक्स वगैरह बन रहा है बिफोर द सर्विस ऑफ नोटिस एंड इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग ऑफ सच पेमेंट, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसके बाद आता है हमारा 11 Anant and a company self-assessed its tax liability of 90,000 for the month of April but failed to make the payment. Anant and company ने self assess की अपना tax liability but self assess कर ली but payment नहीं किया। Subsequently, the department initiated a penal proceeding against Anant and a company for recovery of penalty under section 74A for failure to pay GST and issue a show cause notice on 10 अगस्त which was received by Anant on 14 अगस्त। फिर उसने show cause notice आ गया अनंत के पास 10 अगस्त को विच वॉज रिसीव बाय अनंत एंड कंपनी को 14 अगस्त को मिल गया है। अनंत एंड कंपनी डिपॉजिटेड द टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन 25 अगस्त को उसने 25 अगस्त को वगैरह पे कर दिया एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑन द सेम डे। डिपार्टमेंट इज़ कंटेंडिंग कि वो पेनल्टी के लिए लाइबल है एंड वो 50% ऑफ पेनल्टी बता रहा है। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ स्टैंड टेकन बाय डिपार्टमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविज़न। देखो सबसे पहले तो ये कोई फ्रॉड का केस नहीं है, ठीक है। अब शोकॉज नोटिस कब आया, इशू हुआ 10 अगस्त को और उसने पेमेंट कब किया 25 अगस्त तक पेमेंट कर दिया है, यानी कि विद इन 60 डेज है। तो आइडियली कोई पेनल्टी होनी कैसे चाहिए। बट आपको इसमें क्या है कि ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखो टैक्स किस मंथ का था, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल वाला है, यानी कि अप्रैल का ड्यू डेट क्या होगा 30 मई। 30 मई विल बी ड्यू डेट। तो वेयर सेल्फ असेस टैक्स इज नॉट पेड विद इन 30 डेज, नहीं अप्रैल का है तो ड्यू डेट क्या होगा 20 मई, है ना। तो वेयर सेल्फ असेस टैक्स इज नॉट पेड विद इन अगर 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ अ पेमेंट, अगर सेल्फ असेस टैक्स को आप विद इन 30 डेज के अंदर पे नहीं करें फ्रॉम ड्यू डेट से, ड्यू डेट यानी कि अप्रैल है तो 20 मई विल बी द ड्यू डेट, ठीक है। 20 मई से 30 दिन में आपको करना है। अब आप 20 मई तो आप कर ही नहीं रहे हो,
उस दिन तो पेमेंट कर ही नहीं रहे हो. 30 days from the due date of a payment of a such a tax penalty and equivalent to 10% of tax. तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच हायर का पेमेंट करना पड़ेगा. अब आपका टैक्स कितना है, 90,000. 90,000 का 10% कितना होता है, CGST है ना. 90,000 का 10% हो जाता है 9,000, और 10,000 विच इज हायर यानी कि 10,000 इज पेबल. दस ऑप्शन टू पे टैक्स विद इन 60 days ऑफ इशू शोकोस नोटिस टू अवॉइड पेनल्टी इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ. अब देखो ये किसमें, सेल्फ असेस टैक्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास. 60 days शोकोस नोटिस से 60 days के अंदर पेमेंट करना है आपको, ये आपके पास सेल्फ असेस टैक्स में नहीं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ सेल्फ असेस टैक्स. सिंस इन द गिवन केस अनंत हैज़ नॉट पेड द सेल्फ असेस टैक्स विद इन 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट, यानी कि 20 मई से 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया आपने, कि आपने पेमेंट तो 25 अगस्त को किया है, तो आपको पेनल्टी वगैरह देना पड़ेगा. कितना देना पड़ेगा, 10% ऑफ टैक्स, यानी 90,000 का 10%, यानी कि कितना, 9,000 और 10,000 विच एवर इज हायर, यानी कि 10,000 वुड बी द पेनल्टीज पेबल बाय हिम अंडर द CGST. इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टीज पेबल अंडर इतना CGST में, SGST UTGST में भी इतना ही होगा. हैज़ द स्टैंड टेकन बाय द डिपार्टमेंट दैट द पेनल्टी वुड बी रेवेट ऑन, पेनल्टी लगेगी ये तो करेक्ट है, बट अमाउंट ऑफ पेनल्टी वुड बी 45 अंडर CGST इज नॉट करेक्ट. पेनल्टी का अमाउंट करेक्ट नहीं, पेनल्टी लगेगी ये बात करेक्ट है. ठीक है, उसके बाद अब हमें जाना है 12th वाले पे. इसमें तो लेकिन कर रखा है. देखो 12th वाला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि चालू तो है ना. ओके. Checker note has self-assessed tax liability under CGST Act 2017 as a 80,000 self-assessed tax liability. He failed to tax pay within 30 days from the due date of a payment of tax से पेमेंट करना वो मतलब भूल गया या नहीं किया. Determine the interest and penalty payable by him, explaining the provision of law with the following date of collection of tax is 18 September and date of payment of tax. अब वो कब पेमेंट करा है, 26 नवंबर को पेमेंट करा है कभी, and no show cause notice has been issued to him so far. He intend to discharge his liability even before it issued to him on the assumption that no penalty is liable on him. He is made before issue of show cause. It is a bona fide mistake. बोनाफाइड मिस्टेक है, बट सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाले केस में ये वाला प्रोविज़न नहीं लगेगा. 74A आपको पेनल्टी की पे करनी पड़ेगी. दैट विल बी 10% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि 80,000 का 10% यानी कि 8,000 और 10,000 विच एवर इज हायर, तो आपको 10,000 की पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी. एंड दिस प्रोविज़न इज़ नॉट एप्लीकेबल शोकोज वाला अंडर द सेल्फ असेस टैक्स. ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं. यही है ना ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स. तो कितना, इतना तो हो जाएगा टैक्स का पेमेंट, पेनल्टी तो इतनी हो जाएगी. ठीक है, और इंटरेस्ट भी लग जाएगा. अब इंटरेस्ट लगेगा कब से कब तक, तो इंटरेस्ट लग जाएगा हमारा 18% डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम द ड्यू डेट से. और कौन से मंथ का है ये, 18 सितंबर ना, 18 सितंबर, अक्टूबर, 20 अक्टूबर से विद इन 30 डेज. 20 अक्टूबर से 30 डेज कब आएंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे आपके पास 11 अक्टूबर और अक्टूबर, नवंबर 20, 19 नवंबर तक आपके पास हो जाएगा 30 दिन. नवंबर और दिसंबर के नहीं, कहाँ से लगेगा, देखिए इसमें हमारे पास सिंपली आएगा कि द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड ऑन, ड्यू डेट कब है, इस 18
टैक्स कलेक्टेड ऑन 18 सितंबर, ड्यू डेट कितना होगा 20 अक्टूबर, ये तो हमारा सही है। सिंस द टैक्स इज एक्चुअली पेड ऑन, अब टैक्स कब पे किया जा रहा है 26 नवंबर को, तो इंटरेस्ट वुड बी 18% पेबल फॉर द पीरियड फॉर विच द टैक्स रिमेन अनपेड 37 डेज इन टर्म्स ऑफ। अब हमारे यहाँ पे तो देखो ड्यू डेट कब से चालू हो जाएगी, कब तक पे कर लेना चाहिए था, जहाँ से ड्यू डेट है यानी कि 20 अक्टूबर, वहाँ से 30 दिन के अंदर पेमेंट हो गया है क्या, तो वहाँ से 30 दिन के अंदर आइडियली पेमेंट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो ड्यू डेट से लेके आपको वहाँ तक पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि अक्टूबर में से 20 हटा दो, अक्टूबर और नवंबर के 26 दिन, तो ये होगा 37 डेज। यस, अब 80,000 पर आपको इंटरेस्ट की पेनल्टी देनी पड़ेगी 18%, 37 डिवाइड बाई 365, 1460 है ना, राउंडेड ऑफ हो गया है, 1459.72 आ रहा था, तो 1 राउंडेड ऑफ के प्रोविंसन से अपर साइड राउंड ऑफ हो जाएगा 1460। एज पर सेक्शन 74A(11) ऑफ CGST Act 2017, इन केस ऑफ नॉन फ्रॉड केस वेयर सेल्फ असेस टैक्स एनी अमाउंट collected as the tax is not paid within 30 days from the due date of a payment of tax, inter alia option to pay such a tax before issuance of show cause notice to avoid penalty is not available। ना तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, अब पेनल्टी भी आपको शो कोस नोटिस वाली नहीं होगी, यहाँ पे सेल्फ असेस वाले के केस में 10% ऑफ टैक्स, 10,000 तो हायर वाली 10,000, विच एवर इज हायर देयरफॉर पेनल्टी हो जाएगी 10,000 विल हैव टू बी पे, हाउएवर सच अ पेनल्टी इज पेबल व्हेन द पीओ इशू ऑर्डर इन दिस बिहाफ, तो इतना तो हमें पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जस्ट वेट अ मिनट, देखिए उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो रहा है, सिंपली इनोवा भावे इज इंगेज इन अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, सप्लाई सम सर्विस इन अ मंथ ऑफ अप्रैल एंड कलेक्ट कर रहा है CGST 15,50,000 ऑन सैटरडे सप्लाई ऑन 18 अप्रैल को। हाउएवर ही फेल टू पे द टैक्स सो कलेक्टेड विद इन 30 डेज में, यानी कि ड्यू डेट 18 अप्रैल का ड्यू डेट क्या हो जाएगा 20 में, नेक्स्ट मंथ का ड्यू डेट, वहाँ से अगर 30 डेज़ में पेमेंट नहीं करता है तो वहाँ से लेके जब तक नहीं करता तब तक का इंटरेस्ट लग जाएगा। नो शो कोज नोटिस हैज़ बीन इशू टू हिम सो फार, डिसाइड टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी बिफोर द शो कोज नोटिस, ही इज ऑफ द व्यू दैट नो पेनल्टी इज लेवेबल इफ द पेमेंट ऑफ टैक्स इज मेड बिफोर द इशू ऑफ शो कोज सिंस इट इज़ बोनाफाइड मिस्टेक, देयरफॉर ही सेल्फ असेस हिज लाइबिलिटी फॉर 15,50,000 एंड पेज द सेम ऑन 26 जून। अब देखो यहाँ से कहाँ तक हमें पे करना पड़ेगा, 18 अप्रैल में 20 मई है ना, तो 20 मई 20 मई से आपको करना पड़ेगा 20 दिन तो निकाल दो, मई और जून, तो इट विल बी 36 डेज, नहीं मई में सॉरी 31 डेज है ना, हाँ मई और जून, इट विल बी 37 डेज ऑन व्हाट अमाउंट 15,50,000 पर 18% मल्टीप्लाई 37 डेज डिवाइड बाई 365, तो हमारा निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट 28,282। तो ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड ऑन 18th अप्रैल विल बी दिस, हाउएवर सिंस टैक्स इज एक्चुअली पेड, interest is payable for a period for which the tax remain unpaid, in terms of section this amount of interest would be this, as per section 74(11) of CGST Act, in case of non fraud case where self-assessed tax and any amount collected as the tax is not paid within 30 days from the due date of a payment of a tax, to pay such a tax before issuance of show cause notice to avoid penalty is not available, consequently penalty equivalent to, अब देखो टैक्स तो हमने निकाल दिया, पेनल्टी कितना लगेगा, जितना टैक्स है उसका 10%, यानी कि 15,50,000 का 10% यानी कि 155 लाख और 10,000 विच एवर इज़ हायर, तो देर वुड बी द पेनल्टी वुड बी 1,55,000, इतनी लग जाएगी। तो ये यहाँ तक हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई है, आगे आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता आगे के क्वेश्चंस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या आने वाली है। Discuss the amount of tax and penalty to be paid if any in the following independent cases where show cause notice are issued on account of fraud। अब देखो हमें बोल दिया है कि show cause notice जो है वो show cause notice जो है वो इशू किया है on account of fraud, that is 74A।
ठीक है, अब हमें बताना है कि जैसे कि डेट ऑन विच क्रेडिट वॉज टेकन रॉन्गली, वो कौन सी डेट थी? 31 जनवरी 2025। अब अमाउंट ऑफ आई से टेकन रॉन्गली, कितना अमाउंट गलत ले लिया है? 200 लाख। तो एडजुडिकेशन ऑर्डर पास्ड ऑन 26 जुलाई 2027। अब जिस दिन से शोकोस नोटिस एडजुडिकेशन ऑर्डर का पास किया जा रहा है 26 जुलाई 2027, डिमांडिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट विद इंटरेस्ट एंड इम्पोजिंग अमाउंट इक्वल टू द क्रेडिट एज अ पेनल्टी। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ऑर्डर जो है वो सही जा रहा है या नहीं। एडजुडिकेशन ऑर्डर इज पास ऑन 26 जुलाई 2027 एंड द पेमेंट इज मेड। पेमेंट कब किया है? इन ऑल केसेस असेसी वांट टू पे द अमाउंट, और असेसी पेमेंट कब करेगा? 20 अक्टूबर 2027 को। 20 अक्टूबर आफ्टर 60 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द एडजुडिकेशन ऑर्डर। 20 ऑर्डर कब पास हुआ है? 27 जुलाई। और पेमेंट कब हो रहा है? इज़ मेड ऑन 20 अक्टूबर को। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। आफ्टर 60 डेज़ के बाद ही हो रहा है ना, ऑर्डर के भी 60 डेज़ बाद होगा। तो ओके, अगर आप पेमेंट, अगर देखो फ्रॉड का केस है एंड अगर आप पेमेंट जो है वो ऑर्डर के पे 60 डेज़ बाद कर रहे हो, तो उस केस में तो आपको 100% अमाउंट देना पड़ जाएगा। जो हमारी टाइमलाइन थी 15, 25, 50, 100 वाली, तो उसमें देखो कब हम पेमेंट करें? 20 अक्टूबर 2027 को कर रहे हैं पेमेंट, और ऑर्डर कब हुआ है? 26 जुलाई 2000। तो वहाँ से तो 60 डेज से भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि देखो जुलाई 26 यानी कि 31 में से 26 हटा दो, 26 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 20 अक्टूबर, हाँ, तो इट इज़ मोर देन 60 डेज। तो इस केस में 100% अमाउंट, देयरफॉर एंटायर अमाउंट ऑफ ITC रॉन्गली अवेल्ड विच इज़ 200 लाख एंड इक्वल अमाउंट ऑफ पेनल्टी। तो आपको क्या करना है कि आपने ITC रॉन्गली अवेल किया है, एंटायर 200 लाख एंड इक्वल अमाउंट ऑफ पेनल्टी शैल भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो अमाउंट कितना टैक्स एंड पेनल्टी पे करना पड़ेगा? तो आपने ITC जितना रॉन्गली अवेल किया उतना, एंड पेनल्टी भी 100% ऑफ पेनल्टी, ठीक है। उसके बाद 30 जून 2025 को 250 एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ है 26 अगस्त को। अब इस केस में क्या? 26 अगस्त, जुलाई से अगस्त 30 दिन हटा लो। तो इसमें आइडियली आपने 60 डेज़, ऑर्डर के 60 डेज़ ख़त्म होने से पहले कर दिया है, तो आपको 50% ऑफ तो पे करना पड़ेगा। 50% कितना होगा? 250 का 50% 125, तो आपको 50% ऑफ पेनल्टी लगेगी, यानी कि 125 लाख शैल बी पेबल। तो इसमें क्या? एडजुडिकेशन ऑर्डर, देखो इसमें नीचे आंसर दे रखा है। Adjudication order is passed on 26th August and payment is made on this within 60 days of the communication of adjudication order. Therefore entire amount of ITC wrongly availed, which is, अब सारा अमाउंट ITC wrongly availed कितना? 250 and penalty would be 50%, ठीक है। अब थर्ड वाले केस में क्या है? शोकॉज नोटिस हैज़ बीन इशू ऑन 5 September demanding entire amount of credit with interest and proposing penalty equal to 100%। अब शोकॉज, अब यहाँ पे शोकॉज नोटिस है, ऑर्डर नहीं, शोकॉज नोटिस। शोकॉज नोटिस कब है? 5 सितंबर को, और आप पेमेंट कब कर रहे हो? 20 अक्टूबर को। तो यहाँ से आप गिन लो, सितंबर में से 5 दिन गए, सितंबर एंड अक्टूबर, 31 अक्टूबर आप 20 अक्टूबर को ही कर रहे हो, यानी कि बिफोर 60 डेज़, है ना। तो शोकॉज नोटिस के बाद इनके 25% ऑफ पेनल्टी, तो 120 का 25% पेनल्टी, यानी कि 30 लाख तो आपको पेनल्टी का, और 120 लाख ये रॉन्गली अवेल है उसका लेना पड़ेगा, 30। तो ये देखो, शोकॉज नोटिस इशू ऑन 5 September 2027 एंड द पेमेंट इज़ मेड ऑन 20 अक्टूबर विद इन 60 डेज ऑफ इशू ऑफ शोकॉज नोटिस। Therefore entire amount of ITC wrongly availed is 120 lakh and 25% of penalty imposed will be this, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि Statement of the managing director has been recorded on 6 September 2027 where has admitted the known receipt of input and availing credit wrongly. Showcause notice has not been yet issue नहीं किया है।
शोकोस नोटिस इशू नहीं किया उससे पहले का, तो उससे पहले का 15%, तो 50 का 15% कर लो तो 7.5 लाख और 50 एज अ फुल ITC। तो देखो इसमें लिखा है कि पेमेंट मेड ऑन 20/10/27 इज बिफोर इशू ऑफ शोकोस नोटिस, देयरफॉर अमाउंट ऑफ ITC एडमिटेड टू बी टेकन रॉन्गफुली विच इज़, तो 100% ऑफ अमाउंट एडमिटेड यानी कि 50 लाख एंड पेनल्टी वुड बी 15%। ठीक है, ये हो गया। इट इज़ अज्यूम एडजुडिकेशन ऑलवेज कम्युनिकेटेड द सेम डे व्हेन इट इज़ पास। अब हमें करने हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि 15, 16, 17, 18, 19, मतलब 15 से लेके हमें आइडियली अब करना है 15 से लेके 22, तो वो हम करेंगे ब्रेक के बाद।